साल में तो हॉकी ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पहले रनिंग करता था। एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों को होता है सेलिंग में जाने के जी। जहाँ पे एक 10 साल के बच्चे को हम पानी में लेके जाते हैं जहाँ तो उसका डर तो खुलता ही है। So we have Colombo, who's not from Sri Lanka. But sailing is something exciting if you know swimming. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ताउस। आज का बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फैंटास्टिक इवेंट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं समुंदर के बीचों बीच। क्या करने जा रहे हैं? बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ओशियानिक ऑप्टिमिस्ट सेलिंग चैम्पियनशिप चालू है बॉम्बे में। उसी को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे जाके। बहुत सारी टीम्स आई है यहाँ पर और बहुत सारे यंग इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस वक्त मैं हूँ चौपाटी पे, जो बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉरिशस या कहीं मालदीव्स में हूँ। पीछे आप टेंट्स देख रहे हैं, वो सब टीम के टेंट्स हैं। मगर और आगे जाते हुए समुद्र के बीचों बीच जाएंगे, देखेंगे कैसा होता है सेलिंग एक स्पोर्ट। मैं ताउस रिजवी आप सबका स्वागत करता हूँ। मॉरिशस का इस अलग ताइपी का दैट्स द टीम इंडिया कैंप एंड एवरीबडी विल एक्सपेक्ट टीम इंडिया टू विन। कर्नल मनोज साहब हैं और जो टीम के मैनेजर हैं टीम इंडिया के, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम इंडिया को जीतना क्योंकि वी आर द होस्ट। क्या डू वी हैव अ चांस टू विन? Fairly, I think we have a chance to win. We want one of our player to do well, and at least in medal positions, because you know sailing is a sport which is not so common in India, and we have made a lot of effort to bring this sport to our country. We have been trying for last 2 years to bring this event. This event is basically for kids below 16 years, and it's like a stepping stone for kids who are just getting into sailing. If we catch them young and they are doing well on waters, they are like future Asian Games Championship and Olympic Championship winners in our case. Let's hope we get more champions from this fleet. We have about 20 sailors, optimist sailors from our country who are the top ranking sailors. रूल्स क्या है एग्जैक्टली? क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आते हैं, विनर्स पोडियम फिनिशेस होती है, क्या एग्जैक्टली? Based on the number of participants, like a race is conducted, and now say there are 5 races, so all the first positions, all those, it is like 1 2 3 4, so whosoever has got the least point in 5 races, so he will be the winner, and then the runners up, first runner up, second runner up. कि पानी में तो सब स्पोर्ट एक्साइटिंग होता Okay, है, for स्विमिंग kids. हो, रोइंग हो या सेलिंग हो, Yes, yes. एंड किड्स विल बी। And it's like your, if you're fond of driving a bike, so if you know sailing is like open seas and you can just zip through with your boat, and it is the best sports. I'm an all-rounder. I've played all the games, but once I switched to sailing, it was sailing only. बोट से चलते हैं, देखते हैं सेलिंग क्या है। सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग स्पोर्ट है और वो देखेंगे हम जाके। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है एंड अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, बट सेलिंग इज समथिंग एक्साइटिंग इफ यू नो स्विमिंग, इफ यू लव सेलिंग, दिस इज गोना बी फन। हम बीचों बीच चल रहे हैं समुंदर के और सेलिंग चैम्पियनशिप शुरू है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्रिकेट कवर किया है, फुटबॉल कवर किया है, मगर ये स्पोर्ट का दिस। So we have Colombo, who's not from Sri Lanka. Are you from Sri Lanka? I'm from Spain, He's from Spain. but I work for IODA, the International Optimist Dinghy Association. Oh. So we're giving you a small explanation of what the event is. It's a 5-day event. We have 2 days of fleet racing, 1 day of team racing in the middle, where we'll crown the
Asian team racing champion and Oceanian team racing champion, and then 2 more days of the final series. Fleets will be divided in gold fleet and silver fleet, and there we will have crown a continental Asian champ, both in boys and girls, and an Asian continental championship, also both in both boys and girls. हम पहुंच चुके हैं बोर्ड्स के पास में. Are they coming back? No, wait. Start is between the 2 boats which have the starting signal, so it's a 5 minutes countdown, so it's 5, 4, 1 minute and go. So all that we do it with signs and sound and flags. So now the yellow flag is up for the yellow fleet, so the starting procedure, they're all aligning in the starting line, and once the gun is on, they will all start and will go to the first mark. How long is the race? How long? The race is approximately 45 minutes long. The distance would be 1.1 mile. What is that? That is the wing of an airplane. Okay. So it lets you go up with an airplane, or it lets you go down. Okay. So here the wind, what it gives you, it helps you go upwind. You cannot go straight to the wind, so you need to go between 35 and 45 degrees angle towards the wind when you go upwind. And then when you go downwind, you go 140, 150 degrees because you get the wind from the back. Wind plays a crucial role in this sailing. Wind, tide, and the sailor skills. Sailor skills. Okay, It's so all- it doesn't have an engine or something like that. Nothing. Only powered by nature. Oh. So the thing is, the sailor with more skills will win, and all boats go via measurements. So all boats meet the class requirements. They're all the same. Same boat, same thing. Yellow fleet, race 3. As I told you, we all do it with signs and flags. So that flag, which is red and white stripes, that means AP flag, so it's postponement flag. So the committee has taken a decision not to do this race or not to start. So now we will see what's the next procedure. The race committee has decided to stop the starting procedure. So the committee boat has raised the AP flag, so that means race is postponed. So that means the conditions have changed during the procedure. So as it's not a fair racing, the committee has decided to postpone the race and to start the starting procedure again. Okay. Well, we have very light wind here in Mumbai. We've already done 2 races per fleet today. So let's see. Maximum per day we can do 3 races. So this would be our last race anyway. So let's see if we can make it. One more thing. This guy, it says PRO, or invisible. Okay, this flag is nice. AP flag over A. No more racing for today. No more racing for today. Postponement flag over A means no more racing for today. The conditions, we cannot race more. Conditions are not okay, so we will send all the kids back to the beach. 2 races per group. Today is first day, 2 races, and then we will have 5 days of racing. Okay. 2 races are over. 2 races are over. वाह, अभी के लिए रेस तो नहीं हो रही. कंडीशंस पूरा अलग है जैसा कि आपने सुना कोलंबो से. बट व्हाट अ स्पोर्ट यार. मतलब थ्रिल, फन, एवरीथिंग. इफ यू एंजॉय सी, इफ यू एंजॉय वाटर, इफ यू लव सेलिंग, देन दिस इज अ स्पोर्ट दैट यू कैन प्ले, यू कैन एंजॉय. इतने सारे बोट्स हैं यहाँ पर पीछे सेलर्स के साथ. This is the beginner boat, so sailors from 8, 9 to up to 15 they sail this boat. When they are 15 they change classes. This is the beginner boat. It's a boat sailed worldwide. We have around 3 million sailors in the world sailing this boat. वाओ. यहाँ पर आ रहे वापस. देखिए सेलर्स कितने सारे. So they are going to come back. Yes. They're going to return. Look at that. This is another view from Mumbai. You don't get to see Mumbai from the sea, so you can enjoy the city and see the fabulous boat. Mumbai, how did you find the place? Super nice. We really like the taste of the city. We had a nice walk the first day. Well,
Concerning food, for me it's amazing. I like spicy food, so I feel like home. So sounds really good. Let's enjoy Mumbai. Absolutely, Mumbai, and Mumbai welcomes you. Thank you so much. सर जो हमको राइड पे लेके गए थे बीचों बीच समंदर के जीएल यादव, और ये खुद सेलर रह चुके हैं इंडिया के लिए जी। तो बताइए आई एम अर्जुन अवार्ड इन सेलिंग। अरे अर्जुन अवार्डी सर, इट्स एन ऑनर टू have you on my channel. We all love water and everybody should learn swimming and everybody should learn sailing. But अभी कितना बड़ा मोमेंट है कंसिडरिंग आज का जो सेलिंग इवेंट है इंटरनेशनल इंडिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, जहाँ पे पूरे मतलब आयोडा एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप हमें मिली है। सबसे अच्छा तो हमें बहुत कम समय मिला था इसको प्रिपरेशन के लिए, और जिस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी जो नेशनल ऑप्टिमिस्ट क्लास एसोसिएशन याटिंग ऑफ इंडिया, इन्होंने काफ़ी पिछले 4-5 महीने से मतलब 24/7 काम किया इस चैम्पियनशिप को कंडक्ट करने के लिए। कि सेलिंग क्या है एज ए स्पोर्ट, और खास करके आप कहाँ से आए, कैसे सेलिंग आपने चुना? मैंने सेलिंग बेसिकली जब मैं नेवी में था तब चालू किया था 96 से, और शायद प्रोबेबली मैं सबसे ओल्डेस्ट सेलर हूँ जो मतलब ओल्डेस्ट एज में मैंने सेलिंग चालू किया था। अच्छा, एट द एज ऑफ 27 ईयर्स, और 42 ईयर्स हमसे ओल्डेस्ट अर्जुन अवार्डी। हमने बोर्ड चेंज कर दिया, बोर्ड चेंज करके वो बोर्ड से प्रेस बोर्ड से नॉर्मल बोर्ड पे आ गए। तो बताइए क्या कह रहे थे आप, आर्मी की बोर्ड पे हम इसको? हाँ, बेसिकली मैंने सेलिंग नेवी में रह के चालू किया था, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला उससे। उसके बाद में मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, जहाँ पे हमारा पहला नेशनल सेलिंग स्कूल, उस समय की खेल मंत्री जो वर्तमान में भी श्रीमती यशोराज सिंधिया के अथक प्रयासों से हमने वहाँ पे पहला नेशनल सेलिंग स्कूल को इस्टेब्लिश किया, और मैं पिछले 2013 से वहीं पर हूँ। वहाँ करीबन हमारे पास अभी 50 बच्चे जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, कितनी रेसेस कर चुके हैं इंडिया के लिए? मैंने अपनी लाइफ में करीबन 11 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। 11 इंटरनेशनल और उसमें एशियन गेम का सिल्वर मेडल है, 2 एशियन चैम्पियनशिप के गोल्ड है, वर्ल्ड का ब्रॉन्ज है, वाह, और मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वाह वाह, मतलब सर इट्स एन ऑनर, मतलब ऑनर टू सिट विद यू, नेक्स्ट टू यू यहाँ पर। और से एग्जैक्टली आपका रोल है यहाँ पर? यहाँ पर है जो अभी मैं ऑर्गेनाइज अथॉरिटी को हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम द चीफ कोच एंड टेक्निकल एडवाइजर ऑफ मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी। तो हमारी खुद की अकेडमी के 7 बच्चे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रेस का बोर्ड आप चला रहे थे ऐसे? प्रेस मतलब इससे नाउ आई एम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर, हाँ, सो everything, everything someone has to look after. So I'm in the press. saving us every okay. It's a proud moment that India is hosting such a beautiful, such a one of the biggest tournaments. Somehow I'm giving my some sort of contribution. Absolutely, absolutely. What a moment! What a time in the water, middle of the sea. थोड़ा मुझे पानी से डर भी लगता है, बहुत मगर अच्छा स्पोर्ट्स है, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों को होता है सेलिंग में जाने के जी, जहाँ पे एक 10 साल के बच्चे को हम पानी में लेके जाते हैं, जहाँ तो उसका डर तो खुलता ही है। अच्छा, डर साथ में उनका डिसीजन मेकिंग, उनमें थिंकिंग एबिलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ तो जितने भी बच्चे उनको स्विमिंग तो आती ही होगी, हाँ, स्विमिंग सबको mandatory सबसे बेसिक है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी देख सकते हैं रेस आज के लिए ख़त्म हो गई, और सब पार्टिसिपेंट सेलर्स वापस आ गए हैं।
शशांक जो हमारे साथ हैं भोपाल से आते हैं और इनका आज इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पूरा कैसा एक्सपीरियंस था बताइए शशांक आज के दिन, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, बॉम्बे इंडिया होस्ट कर रहा है। आज इससे पहले आप एशियन शायद वर्ल्ड भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आप बताइए ज़रा। एशियन एंड ऑप्टिमिस्ट चैम्पियनशिप थी। आज का एक्सपीरियंस ऐसा था कुछ कि इवेंट बहुत शिफ्टी थी और अभी तक मैंने वर्ल्ड्स गया था, मैं जो वर्ल्ड्स में मेरे फिनिश कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर आज मैं सोच के गया था कि हाँ आज थोड़ा करना है अपने को, क्योंकि अपन भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे कर सकते हैं तो। और आज मैंने एक 15th एंड सेकंड फिनिश किया एक, और मैं NSS भोपाल से हूँ। भोपाल में तो हॉकी ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पहले रनिंग करता था मैराथन, तो मैं एक एकेडमी में था, खेलो या युवा कल्याण मध्य प्रदेश। तो मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी उसमें, तो एक सर थे, उनने मुझे वहाँ से सेलिंग में डलवा दिया GL सर के थ्रू। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अभी तक यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, मतलब कोइंसिडेंट, मतलब पहला प्यार नहीं था मतलब कि नहीं सेलिंग मुझे करना है, क्योंकि जानकारी भी नहीं होगी इतनी। कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, बस आए प्रैक्टिस करने लगे और अब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मज़ा आ रहा है। कितने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया आपने? ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल है। दूसरा इंटरनेशनल। चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट। पूरे रेस अभी तो बहुत बची है, 4 दिन और है। हाँ 4 दिन हो रहे, आज 2 रेसें हुई है, हवा चली गई थी इसलिए उनने बाहर भेज दिया। अब कल से शुरू करेंगे वापस, देखते क्या होता है। लेक में सेलिंग कर देंगे भोपाल में? हम लोग लेक में सेलिंग करते हैं, पर और उधर समुंदर में कितना अलग होता है सेलिंग करना? हम लोग लेक में करते हैं। लेक में सिर्फ ये रहता है कि जो टाइड होता है, टाइड नहीं होता है इधर लेक में। और जैसे इधर है तो इधर बिल्डिंग से तो ये बड़ी शिफ्टी विंड आती है, और लेक में हमारे उधर भी ऐसी शिफ्टी विंड है पर इतनी नहीं है, और वहाँ पे अभी थोड़ी हवा भी कम रहती है, तो प्रैक्टिस भी कम कर पाते हैं हम, इसलिए थोड़े से पीछे हैं। तो मुंबई का अलग ही माहौल है, मतलब मुंबई की सेलिंग मतलब डिफ़िकल्ट लगी कि कैसा मज़ा आया? मज़े आ रहे, डिफिकल्ट नहीं है। Well said. Continue. My best wishes all time with you. तो भाई एकलव्य है हमारे साथ, और एकलव्य आप कहाँ से आते हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से। अच्छा, आप भी भोपाल से आते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था मुंबई के समंदर में, और भोपाल में तो आप करते रहते हैं, कैसा पूरा एक्सपीरियंस था बताइए। यहाँ पे सी है, हमारे जो रहते हैं भोपाल में वहाँ पे सी नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में है, इसलिए वहाँ हम लेक में सेलिंग करते हैं, लेक में प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि जो सी रहता है, जो सी विंड रहती हैं और जो लेक विंड रहती है उसमें फ़र्क होता है। उधर पे पानी थोड़ा अलग रहता है, इधर सॉल्टी वाटर रहता है, और उधर टाइड इफेक्ट नहीं मिल पाता, इधर टाइड इफेक्ट भी रहता है। अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बहुत नहीं, फिर टाइड इफेक्ट भी रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अच्छा ये बताइए कैसा आपने शुरुआत कैसी की सेलिंग की? मैं जब छोटा था 7 साल का, तब मैं सेलिंग के लिए देखने के लिए आया था, फिर मेरे को थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया और मैंने उसका ट्रायल दिया, और फिर GL सर ने हमारा सिलेक्शन किया, हमें मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए। और इससे पहले आप कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? मैं पहले कोई स्पोर्ट नहीं खेलता था, नॉर्मल समर कैंप्स अटेंड करता था काहे के? स्पोर्ट्स के, जिमनास्टिक, बॉक्सिंग, वुशो, ये सब नॉर्मली। अच्छा, बॉक्सिंग भी करते हैं? गर्मियों की छुट्टी में खेलने जाता था। अच्छा अच्छा, और आपका नाम एकलव्य है तो आपका थंब देख सकता हूँ? अच्छा, दोनों हैं। चलिए, यानी मालूम है ना एकलव्य की स्टोरी? चलिए, ऑल द बेस्ट, एंड जीतना है टीम इंडिया को, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स। यादव जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा सेलिंग की बोट कैसी होती है? ये फाइबर की है? हाँ, ये फाइबर का बना हुआ बोट है, और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल बोट होती है, क्योंकि बेसिकली हम इसको ट्रेनिंग, बच्चे जब पहली बार पानी में जाते हैं तो इसी बोट में जाते हैं। अच्छा, ये बोट नॉर्मली 6 से 7 साल से बच्चे को हम सेलिंग सिखाना चालू कर देते हैं इन बोटों में। अच्छा, इसमें इंजन नहीं होता ना? तो बिल्कुल इंजन नहीं होता इसमें, जो भी है नेचर के पावर से आपको बोट चलाना होती है। इसके अंदर सेल होता है, हम सेल को के ऊपर विंड का प्रेशर लेते हैं, उससे फॉरवर्ड और साइड में जो फोर्स क्रिएट करना होता है, बिकॉज अब कोई टेक्निक होती है सेलिंग में हवा को कंट्रोल करने की, उसको कंट्रोल करके बच्चों को टेक्निक बता के ताकि बच्चा बचपन से ही अच्छे से उस चीज़ को सीख सके। तो फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है अगर सेलिंग की बात आए, और फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है? ऑफकोर्स हर एक गेम में आजकल फिटनेस एक मेन फैक्टर है, मगर ये जो बोट हम अभी बच्चों के लिए करते हैं इसमें हम सिर्फ सेलिंग फिटनेस पे ध्यान देते हैं कि बच्चा सेलिंग करे, उसको भी
इस उम्र में हम बच्चों को ज़्यादा वर्क या एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको ग्रोथ रुक जाएगा। मगर जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है बड़ी बोटों में, जहाँ पे आपको डेफिनेटली अच्छा फिटनेस चाहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, विंड रीडिंग, और डिफरेंट कंडीशन में आपको जाना पड़ता है। जैसे अभी हम बॉम्बे आए, हम आए भोपाल से, जहाँ पे हमें लेक कंडीशन है, यहाँ पर टोटली कंडीशन डिफरेंस होती है। यहाँ पर टाइड है, यहाँ पर चॉप्स आते हैं पानी में, वेव्स आती है, इन सबको अपने बोट को चलाने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, तो उसमें समय लगता है। मगर जो बच्चे, जैसे हम बोलते हैं 8 से 10 साल का बच्चा अगर चालू करता है तो बहुत अच्छा उसका, हमने देखा है जो भी अभी तक ओलंपियन बने हैं उन्होंने सब ने इसी बोट में सेलिंग चालू की है। अच्छा, और बड़ों की बोट अलग होती है जी सर। ये तो हमारे साथ है दिव्यांशी मिश्रा, जो नंबर 1 है रैंकिंग में गर्ल्स की, और इट्स अ प्राउड मोमेंट, बड़ा इवेंट है और बड़ा मोमेंट है आप लोग के लिए। हाँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें अच्छा भी लग रहा है। ये हमारा ही होम ग्राउंड है, तो हमें हमारे ऊपर एक प्रेशर भी आता है, क्योंकि हमें अब अच्छा करना है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बोर्ड के थोड़ा बहुत हिस्से बता दें हमको कि क्या है, क्योंकि हमको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर बोर्ड है, ये यहाँ पे लगाते हैं, इसको सेंटर बोर्ड बोलते हैं। दिस इज़ अ रडर, जिससे बोट कंट्रोल होती है, जिससे बोट का एंगल चेंज होता है। इससे ये बॉइंसी है, जो अगर हमारी बोट पलट जाए, कैप्सिज हो जाए, तो ये हमारी बोट को फ्लो रखती है। ये दिस इज़ द सेल, जिससे हमारी बोट चलती है। दिस इज सेल, जिससे हमारी बोट आगे बढ़ती है। दिस इज़ द मास्ट, दिस इज़ बूम, दिस इज स्पिरिट। अच्छा, ये सब क्या करते हैं? ये सब सेल का एक शेप देता है, जिससे हमारा सेल अच्छा रहे और हमारी बोट स्पीड रहे। अच्छा, सेल को कंट्रोल करता है। और जो बढ़ती बोट किससे, विंड से आगे बढ़ती है? हाँ, विंड से बोट आगे बढ़ती है। और स्किल से, स्किल मतलब आप कभी इस तरफ जाते, कभी इस तरफ जाते बैठते? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बोट बैलेंस और सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। हाँ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो बेसिकली पता चल गया हमको कि क्या है सेलिंग और कितना बड़ा मोमेंट है टीम इंडिया के लिए, और स्पेशली द ऑर्गेनाइजर्स। एंड आई वुड लव टू नो द रिजल्ट्स आज का क्या है। जैसे 4 दिन और है रेस के लिए, बट रिजल्ट्स क्या है आज का वो जानना ज़रूरी है। We have Nico from Singapore. How was the whole sailing experience in Mumbai, Nico? It was good. The winds were a bit unexpected, but it was like very fun overall. Yusuf from Sri Lanka. How was the whole experience, considering you come from a country where there is a lot of water? It was quite a fun experience. It's the first time I'm here for IODA, so the Asian and Oceanian Championship. It was quite fun. I mean, we don't have so many boats starting in Sri Lanka, but here there was 100 boats starting on one line, and it was quite a good experience. I've never had this experience before, and this is quite a nice experience. How old are you? I'm 14. 14. And tell me about how did you pick up the sport? I actually picked up the sport quite a long time ago because we were offered to join it from school, and since then I've continued it. It's been about 4-5 years. It's been quite a nice journey. So Japan and Singapore is leading this race. यहाँ पर जापान और सिंगापुर आज का दिन लीड कर रहे हैं, और इंडिया है 25th पोजीशन पे जो होस्ट है। और 4 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा। क्या करेंगे चैम्पियंस इंडिया के सेलर्स, देखने लायक रहेगा। मगर इस वक्त मौसम बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। ह्यूमिडिटी तो है ही, बट जब आप समुंदर के पास आ जाते तो सारी ह्यूमिडिटी चल जाती है। और दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एरिया फ्रॉम मुंबई व्हाट वी यूजुअली विटनेस। ये बीच कुछ अलग ही है पेड़ों के साथ, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही आइलैंड है बॉम्बे का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी मेरी तरफ से। स्पोर्ट्स विद ताउस पे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, बताइए हमें कैसा लगा आपको ये स्टोरी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अलग अलग स्टोरीज़ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैं लाता रहूँगा स्पोर्ट्स विद ताउस पे। फॉलो करें मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अभी के लिए गुड बाय।